Hello, dear students. Today we are going to start Chapter 10 Motion and Measurement of Distances. So, let us start it. What are our objectives of this chapter? We will explain and understand the standard units of measurement. We will also describe and learn the various modes of transport, and we will describe and see the types of motions. First of all, dear students, let us see what are the modes of transport. Modes of transport क्या होते हैं? बहुत पहले लोगों के पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन नहीं होते थे। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो या तो खुद उस सामान को उठाकर पैरों से जाते थे या फिर उसको अपने कंधे या कमर पर उठाकर सामान को ढोते थे या फिर जानवरों के ऊपर ले जाते थे, जैसा कि आप इन दोनों पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो। जब जानवरों का इस्तेमाल होता था तो उसमें आप जैसे कि पिक्चर्स में देख रहे हो, ऊंटों का भी इस्तेमाल होता था, घोड़ा गाड़ी, बग्घी, याक, गधे, घोड़े या कोई भी जानवर, उनको वो पालते थे और उनका इस्तेमाल यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे। They used to use their animals, their pet animals like donkeys, horses, yak, camel for the transportation purposes. Later, people began to use the animal carts, boats, steam engine trains, automobiles, motorboats, ships, aeroplanes, electric trains, supersonic planes, spacecrafts for the transportation purposes. You can see it in the picture. The bullocks are being used for the bullock cart, whereas the boat is also there for the transportation on water. There is the horse cart and there is the train. All these were used for the transportation. Then came the automobiles. Motorized boats and ships were used as the means of transport on water, and in the early years of 1990, the aeroplanes were developed, which were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplane, and spacecrafts were invented in 20th century. Can you identify these modes of transport? Yes, the motor car is used for the transportation on land. The two ships are used for the transportation on water. The aeroplane is used for the transportation on in air. Yes, very nice. Can you identify these modes of transport? The two rails are used for the transportation on land, and the spacecraft is used for the transportation in air for space. Let us now go ahead on measurement. Dear students, measurement क्या होता है? Measurement is comparing an unknown quantity with a known fixed quantity. किसी एक unknown quantity को जब हम किसी एक fixed quantity के साथ compare करते हैं, तब हमें measurement को define करना easy हो जाता है. The known fixed quantity is called a unit. जो हमारी known fixed quantity होती है बच्चों, उसको unit बोलते हैं. All measurement have two parts. सभी measurement के दो part होते हैं. The first part is a number and the second part is a unit. जो पहला part होता है बच्चों वो number होता है और जो दूसरा part होता है वो unit. For example, if the length of your notebook is 20 centimeter, then 20 is the number and the unit is centimeter, which is written as cm. अगर आपकी नोटबुक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है बच्चों, तब आप 20 यह नंबर लिखते हो और उसके बाद सेंटीमीटर को cm की फॉर्म में लिखते हो, ये आपकी यूनिट है.
सो मेजरमेंट क्या है? ये एक तरीका है जिससे कि हम वर्ल्ड में डिस्टेंसेस, स्पीड या टाइम जैसे हमारे क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स में। ये हमारे काफी क्वेश्चंस का आंसर देता है, जैसे हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। ओके, और मेजरमेंट से हम कितना मिल्क हमारे कार्टन में है या वाटर है, क्या कॉस्ट है आपके किसी भी सामान का, या डिस्टेंस कितना है होम और स्कूल के बीच का, इसको आप बता सकते हैं। You can see it in the figure. You use the ruler to draw lines. You always use a ruler to measure object. Distance can be anyone. Yes. Earlier, बहुत पहले क्या measurement के तरीके होते थे बच्चों? Can you remember? Yes. Long ago, people used length of foot, width of finger, distance of step, hand span, foot span as units to measure lengths. Were these units good and valid? No, these units were not so valid and correct because these units were different for different people. अलग-अलग लोगों के हाथ का जो साइज है वो अलग होता है, पैरों का साइज अलग होता है, इसीलिए जो ये बहुत पहले यूज की जाने वाले तरीके थे, लेंथ ऑफ फुट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, ये सब बिल्कुल भी वैलिड नहीं थे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू आती थी। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें, इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया जिससे कि सभी यूनिट सेम हो इंटरनेशनली, एंड इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जिसे हम स्मॉल में m लिखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। लार्जर यूनिट होती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करें अगर बच्चों, देन लेंथ इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप। यू कैन सी इट इन द पिक्चर। आपने जरूर इन सबको कभी ना कभी देखा ही है। जैसे मीटर स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर स्केल जो है ये आपका रूलर है, मेजरिंग टेप आपने देखी होगी, स्कूल में मेजरिंग रॉड भी होती है जिससे कि हम हाइट मेजर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट बुक और पेंसिल वुड बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। जो आपकी टेक्स्ट बुक या पेंसिल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर लेते हैं। करेक्ट मेजरमेंट हम कैसे करें? व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ? बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लेस द स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. The zero of the scale should be kept at the end of the object. If one end of the scale is broken, then we can take the measurement from another full mark and then subtract this reading from the final reading. Okay? The eye should be exactly direct in front of the point where the measurement is taken. आप देख रहे हैं शुरुआत वहीं से करते हैं, जीरो से। स्केल हम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। यदि स्टार्टिंग टूटी हुई है तो हम अगले 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसे माइनस कर सकते हैं रीडिंग को, हमारे उस पर्टिकुलर रीडिंग में से जितनी रीडिंग हमने छोड़ी है, फाइनल में से इनिशियल को। ये देखिए, ये तरीका है करेक्ट और इनकरेक्ट मेजर करने का। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट तरीका है आप स्केल को एकदम सीधा रखेंगे, लीनियर। यदि आप स्केल को टेढ़ा रख रहे हैं तो वो इनकरेक्ट तरीका है। Also, how will you see the reading? आपको एकदम फ्रंट, एकदम सामने से रीडिंग देखनी है। यदि आप टेढ़ा देख रहे हैं फ्रॉम साइडवाइज, दैट इज नॉट करेक्ट। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, हम कैसे मेजर कर सकते हैं कर्व्ड लाइन की लेंथ को? डियर स्टूडेंट्स, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन AB बाय यूजिंग अ थ्रेड। जो आप लाइन देख रहे हैं, ब्राउन कलर्ड लाइन AB, इसको हम मेजर कर सकते हैं लेंथ by using a thread. You can take a thread and make a knot near its one end. Keep the knot on point A. Then place the thread over the curved line till the point B. Make the mark on the thread where it touches the point B.
Then stretch the thread over a meter scale and measure the length from the knot to the mark. This will be equal to the length of the curved line, and in this way you can measure the length of a curved line. Let us see now what is motion. Dear students, the change in the position of a body with time is called motion. टाइम के साथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मोशन. ओके, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन ओवर टाइम, वो ही मोशन है. ओके, सो आप पिक्चर में देख रहे हैं, चाहे आपकी फॉर्मूला 1 रेस की कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, रनिंग ऑफ अ डॉग हो, क्रिकेट में आप रन बना रहे हो, फुटबॉल में आप गोल कर रहे हो, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, या फिर आप ये देखें कि कोई फिश मूव कर रही है, कोई बेबी मूव कर रहा है. क्लॉक की हैंड्स की भी बात करें, वो भी मूव करती हैं. आपकी बटरफ्लाई की बात करें, व्हेन द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ऑन, इन ऑल ऑफ देम व्हाट इज कॉमन, ये सभी अपनी पोजीशन वक्त के साथ चेंज करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल मोशन. What are the types of motion? Dear students, there are 3 different types of motion. And what are they? They are rectilinear motion. Spelling you have to remember. Periodic motion and circular motion. Dear students, you have to remember the spellings of all 3 types of motion. Let us see the picture. In this picture, you are seeing that the soldiers are doing parade. They are marching in a straight line. Can you see it in the picture? Yes, this straight line movement is called as rectilinear motion. In second picture, see, the pendulum of the clock is moving back and forth and coming back to its original position both the times, both sides. This is the periodic motion, where the motion is repeated at regular interval of time. And in this picture, can you see the blades of the fan? How are they rotating? They are rotating in a circular manner. So this is the example of circular motion. Let us now see the 3 types of motion: rectilinear motion, circular motion and periodic motion one by one. First of all, let us see what is rectilinear motion. The rectilinear motion is the motion of a body along a straight line. जब भी किसी बॉडी का मोशन यानी कि मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन पर होगा तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड. आप पिक्चर में देख रहे हैं सोल्जर्स का मार्च पास्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड. किसी भी व्हीकल के मोशन जो स्ट्रेट रोड पर होगा उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस. आप पिक्चर में देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर जितने भी हमारी स्प्रिंटिंग हो रही है 100 मीटर रेस में, जितने भी हमारे रनर्स हैं सब स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ rectilinear motion. And here is the motion of train on straight track. ये भी एक rectilinear motion का example है. Let us now see the example for circular motion. What is the circular motion? Circular motion is the motion of a body in a circular path. जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे देन हम बोलेंगे कि एक सर्कुलर मोशन है. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसे एक फैन के ब्लेड्स सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहे हैं. इसके अलावा मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. जो क्लॉक के हैंड्स हैं ये कैसे सर्कुलर पूरा रोटेट करते हैं पूरी क्लॉक में, ये भी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है. मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड. आप पिक्चर में देखिए लेफ्ट साइड, मैरी गो राउंड भी सर्कुलर गोल गोल ही घूमती है. एंड मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप. और जो आपका स्पिनिंग टॉप होता है वो भी जो गोल गोल रोटेट करता है, ये आपका एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट
पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? इट इज द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये वो मोशन है बच्चों जो खुद को रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में जो रिपीट होता है वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। आप पिक्चर में देख रहे हैं जो आपकी ये पेंडुलम है क्लॉक में येलो कलर की, ये पेंडुलम बार बार रिपीट हो रही है एक डेफिनेट टाइम के बाद में अपनी जगह। सो ये एक पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। इसके अलावा मोशन ऑन अ स्विंग, ये देखिए स्विंग पर जो बच्चा झूल रहा है बैक एंड फोर्थ, ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। ये वक्त वक्त पर कभी आगे कभी पीछे रिपीट हो रहा है डेफिनेट टाइम में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ स्विंग एंड मोशन ऑफ नीडल इन अ स्विंग मशीन। ये देखिए ये जो मोशन है नीडल का स्विंग मशीन में, ये भी आपका एग्जाम्पल है एक पीरियोडिक मोशन का। क्यों? क्योंकि जब स्विंग मशीन चलती है तो बार बार अप एंड डाउन ये जो मूवमेंट है नीडल का ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे होता है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो लेट अस समराइज what we have learned. Dear students, we have learned the modern modes of transport used. We have also learned the measurement means comparing an unknown quantity with a known quantity. We have also understood that the known fixed quantity is called as unit. In the early days, units of measurements included the length of a foot, the width of a hand, and the distance of a step. We also learned that the system of standard units of measurement used now is known as the International System of Units, which we write as SI units. We have also learned that for measuring the length of any object, we need to choose an appropriate device so as to get accurate results. We also learned about motion, that motion is defined as change in the position of an object with time. And at the end, we learned that there are three types of motions: rectilinear motion, circular motion, and periodic motion. Thank you so much and have a great day. Don't forget to subscribe and like the video so that you can get the notifications for the further upcoming videos. Thank you.